Good morning, students. Those who are present, please send yes. Very good, very good. Okay. Earlier, six students were there. Two are not there. I think Kishan Lal and Hussein. Okay, they left. Fine. They will join afterwards. So, successfully completed four chapters. Going to start fifth chapter. ठीक है. Again, easy chapter. Remember my words. Again, easy chapter, but lengthy one. ठीक. Differential equations part 1 we are going to start. In this part we are going to study the basic concept which we have already studied in our 12th standard of science. If you are from science background of 11 12th, you have already studied these concepts, okay, but little bit, you know, uh, lengthy because of concepts, because of the methods to solve the differential equations. The beauty of this chapter is it is a scoring one. Remember, it is a scoring one, but there is one condition. You should know all derivatives and integration formulas and methods. The person who is good in derivatives and integration, for him that all next chapters, remember, differential equation part 1, differential equation part 2, Laplace transform, multiple integrals, application of multiple integrals, and even special functions, these all six chapters is easy, are going to be easy for that person, the person who is good in integration and derivatives. Okay, not only formulas, the methods to solve, the methods to solve. Okay, so those are not good in that, go to your 11th 12th standard, not in school or college, go to, I mean to say, go to the books. Okay, online now because of corona they have made available these books on Bal Bharti, e-Bal Bharti website. Okay, you can search, you can download, revise the formulas, revise the methods. Trigonometric formulas are also there, you have to revise all them, basic trigonometric formulas, not the trigonometric functions and all. Okay, and once you are good in that, then you will be very good in all these six chapters, because the basics of derivatives and integration is required for these next six chapters. Till the recent last fourth chapter, we were not required integration derivatives that much, except the one part, differentiation and integration of hyperbolic functions. Okay, in that also 12 to 24 formulas are there, no need of any other like multiplication and all this required. But now here you need it and it is must. ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक, so let's start with the fifth chapter, which is differential equation. Okay, I am saying it is easy but lengthy, like what I said about complex number, it is easy but lengthy. Why it is lengthy? Because of more concepts. When you have more concepts, see, when you have more problems, that is not called as lengthy, because you find repetitive examples. एक की तरह दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, थोड़ा 19-20 चेंज होगा, गेटिंग, बस बाकी देखने को तो वही मिलेगा. बट व्हेन यू आर मोर कंसेप्ट्स, ज़्यादा कंसेप्ट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाता है. हर कंसेप्ट का 2-2 3-3 क्वेश्चन पकड़ के चलो. तो देयर इज डिफरेंस. अगर आपको डिफरेंस समझाना है तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ. देखो, रफ पेज पे बता रहा हूँ. एक लेंदी कहने का मतलब, ठीक है, लेंदी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लेंदी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स. इसमें 4 ही कंसेप्ट्स है, ठीक है, 4 कंसेप्ट्स है, और हर एक कंसेप्ट के 10 क्वेश्चंस है, जिसमें 3-3 क्वेश्चंस रिपीटेड है. गेटिंग? तो बेसिकली आपको एक कंसेप्ट से 3 ही क्वेश्चंस है, तो 4 कंसेप्ट्स के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 12, राइट. बट एक चैप्टर आपके पास एक ऐसा है जो कंसेप्चुअली लेंदी है, जिसमें मान लो 10 कंसेप्ट्स है, एंड एक कंसेप्ट के डिफरेंट वैरायटी के 3 ही क्वेश्चंस है.
या फिर ज़्यादा दूर नहीं जाते, 6 कंसेप्ट लेते हैं, एक कंसेप्ट के 3 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18 क्वेश्चन। तो यू टेल मी विच वन इज लेंदी, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, कंसेप्चुअली लेंदी और क्वेश्चन वाइज लेंदी, टेल मी। सेकेंड वन ऑब्वियसली, बिकॉज कंसेप्ट ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा, कंसेप्ट कम रहे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, तो उसको हम लेंदी नहीं बोल सकते। आई एम वेरी मैथमेटिकल पर्सन, मैथमेटिक्स की तरीके से इसको हम लेंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और एज पर माई नॉलेज, जितना भी मैथ्स मैंने पढ़ा या आपने पढ़ा है, ठीक है, या फिर जो हम देखते हैं मैथ्स में एक कंसेप्ट से रिलेटेड मैक्स टू मैक्स डिफरेंट वैरायटी के 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, उससे ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ मैथ्स यू नो अनबाउंडेड है, अगर आप बुक के बाहर जाके देखो, लेकिन जब आप एग्जाम ओरिएंटेड और बुक के अंदर देखते हो, सो इट इज़ समवेयर बाउंडेड, ओके। एंड यू सपोज टू फॉलो सम बुक और यू सपोज टू फॉलो नोट्स, यू सपोज टू फॉलो सिलेबस, ओके। सो स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम में ही पता चलता है कि ये एक इक्वेशन है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन कंटेनिंग, मतलब ऐसा इक्वेशन जो कुछ तो भी कंटेन करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। क्या कैरी करेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, मतलब ये जो होता है ना, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये कोएफिशिएंट्स जिस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक ओ डी ई, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना मैं इधर भी लिख रहा हूँ, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दूसरा टाइप होता है पी डी ई। ओ डी ई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड पी डी ई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी मतलब जहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा दिखने को मिलेगा वो। पार्शियल मतलब जहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक भी डिफरेंस है, समवेयर दे हैव लिटिल बिट डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक। फिर इसके बाद हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ना होगा। तो सबसे पहले होता है ऑर्डर, ठीक है, एंड सेकंड होता है डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है ऑर्डर एंड क्या होता है डिग्री। तो सिंपली ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, इतना याद रखना। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज योर ऑर्डर। एंड डिग्री मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर इसकी कोई ऑर्डर पूछे एंड डिग्री पूछे, इसका ऑर्डर क्या है पता है, इसमें डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डी वाई बाई डी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर हुआ 1। इसका पावर क्या है, पावर मतलब रेस टू कितना है 1, तो डिग्री भी क्या आ गया 1 आया, ठीक है। एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब द होल स्क्वायर माइनस 4 cos x, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 3 या 4 ले लो, द होल रेस टू 4 प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगा। तो सबसे पहले चेक करो, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। हमें क्या पता है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब ये क्या ऑर्डर इसका 3, ऑर्डर इज 3। डिग्री हाईएस्ट का पावर क्या है 2, तो वो उसका डिग्री। भले इसका पावर 4 है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। अगर ये नहीं होता
तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर था, ऑर्डर 2, डिग्री उसका पावर 4। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। विच वन? ओके, ऑर्डर मतलब क्या, ये सब में जिसका डेरिवेटिव हाईएस्ट है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स 1 एक पावर है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा कौन, ये। तो इसका ऑर्डर हो गया 3। इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। इसका पावर क्या है, 2, तो डिग्री हो गया 2। पावर इज नथिंग बट डिग्री। ठीक, ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव एप्लीकेबल है। अगर ये नहीं होता तो हाईएस्ट ये वाला होता, तो यहाँ पे ऑर्डर आता 2, उसका डिग्री 4। अंडरस्टूड जीत? जीत, ओके ओके। यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कहते हो तो वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब सेपरेट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रूट्स, और यू कैन से रूट्स मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ठीक है, और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस मतलब डिवीजन में रहेगा तो वो हटाना चाहिए। ठीक है, रैशनल एंड फ्री फ्रॉम रूट्स और फ्रैक्शंस ऐसे होना चाहिए। सर एग्जांपल के साथ बताओ ना थोड़ा सा। ठीक है, एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन वाई। टेल मी इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। टेल मी इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। आप कॉमा करके लिख के भेजो। जो फर्स्ट भेजा वो मतलब फर्स्ट नंबर रहेगा ऑर्डर, सेकंड नंबर रहेगा डिग्री। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री मुझे बताओ। स्पीड अप। वन कॉमा वन, वेरी गुड। और वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। वन कॉमा वन, राइट, बट योर आंसर्स आर रॉन्ग। जब तक हमें ये नहीं पता था ना ये लाइन, तब तक वन कॉमा वन राइट था। ये लाइन जब तक हमें नहीं पता था तब तक वन कॉमा वन राइट था, बट ये लाइन आने के कारण, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट लाइन, आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन में आपके डेरिवेटिव के जो आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है ना, वो तो किसी को डिवाइड थे ना तो इसका स्क्वायर रूट था। यहाँ पे आपका एक डेरिवेटिव डिवीजन में है, भले वो हाईएस्ट ऑर्डर है या नहीं वो डिफरेंट पार्ट है, बट इट इज़ अंडर डिवीजन, दैट्स वाई आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए, डिवीजन में है इसके लिए हटाने के लिए मुझे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स से। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हर एक टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स से। तो डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल आउट, ये दो बार है, इसके लिए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई होने के कारण उनका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, हाईएस्ट तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर तो वन ही है। अगर इससे ज़्यादा होता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो वो 2 लिख देते। डिग्री क्या है, इसका 1 है इसका 2 है, तो इसका जो हाईएस्ट है वो कितना है 2, तो 2 उसका क्या रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये जो मैंने कहा इट इज़ सपोज टू बी रैशनल, मतलब डिवीजन में नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम रूट्स एंड फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शन में था, डिवीजन में था मतलब फ्रैक्शन में था। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी ये तो आपका बेसिक्स था, इसके आगे भी जो कंसेप्ट आपने अपने 11th-12th में पढ़ा है, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ, अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैंने कभी कहाँ पे डेल नहीं यूज़ किया है, पूरा डी यूज़ किया है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जितना भी अभी हमें पढ़ना है सब उसी के बारे में पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप बहुत बार क्या करते हो, यू डू व्हाट यू डू, यू टेक डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स लेने के बाद आप क्या करते हो, कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हो, कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट, ठीक है। एंड अगर एक कांस्टेंट है, ठीक है, डेरिवेटिव्स लेते हो, लेकिन कैसे, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कितने बार डेरिवेटिव लेना है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव लेना है, एक कांस्टेंट है तो एक बार लेना है, तीन कांस्टेंट है तो तीन बार डेरिवेट करना है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? अरे हाँ ना, बच्चों तो बोलो यस, ओके, चलो किसी ने तो बोला। तो जितने आपके कांस्टेंट से उतना आपको क्या लेना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन 3x प्लस b कॉस 3x। हमारा फोकस ये फॉर्मेशन के ऊपर नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक्स होना है, पता होना चाहिए इसके लिए। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट्स कितने बताओ, हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर, फास्ट फास्ट फास्ट, 2, वेरी गुड। तो कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, राइट। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज़, साइन 3x हो जाएगा, कॉस 3x, एंड 3x नहीं, अगर x होता तो साइन का सिर्फ कॉस लिखते, लेकिन 3x होने के कारण 3x का डेरिवेटिव जो कि आता है 3, फिर b एज इट इज़, कॉस 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, एंड 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3, ठीक। 2 होने के कारण इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3a एज इट इज़, कॉस 3x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 3x, एंड 3x हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यहाँ पे आएगा माइनस 3b, साइन 3x हो जाएगा कॉस 3x प्लस कॉस 3x होता है, एंड 3x का डेरिवेटिव कितना आता है, 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा 9। दोनों में से अगर मैं माइनस 9 को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a साइन 3x प्लस b कॉस 3x, और अगर आप देखो तो y का वैल्यू मतलब ये है, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 9y, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 9y इधर आएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 0, ठीक। इट इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, चलो ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, कॉमा करके लिख के बताना, ऑर्डर फर्स्ट, डिग्री सेकेंड। वन कॉमा वन गलत, डेरिवेटिव देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ऑर्डर 2, उसका पावर क्या है 1, 2 कॉमा 1, वेरी गुड आदर्श, जीत। ध्यान नहीं है आपका पढ़ाई में, 11th-12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना है। हाँ, आपको नहीं था, आप कॉमर्स पढ़े हो, तो ये था आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज़ नॉट आवर फोकस, ठीक है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, इसके लिए हमने ये किया। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं पता है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स है दैट इज आवर फोकस, एंड दैट इज व्हाट इज वी कॉल्ड एज अ solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक? तो इसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ये जो है ना, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव मतलब रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रोसेस ऑफ, सॉल्यूशन मतलब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रिमिटिव, या फिर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो इक्वेशन, एक्स वाई वाला इक्वेशन, मतलब एक्स वाई वाला इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फाइंड solution of first order first degree differential equations। सिंपल रखा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा है। यहाँ पे हम अभी जो पढ़ेंगे इसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप का है उसके बेसिस पे उसके मेथड्स हैं। तो ऐसे 6 मेथड्स आते हैं। ठीक, जब पढ़ेंगे तो नाम पता चलेगा आपको, दैट इज़ नॉट अ कंसर्न कि नाम क्या है, बट एक बता के रखता हूँ। एक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, एक है होमोजीनियस इक्वेशंस, एक है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे 6 मेथड्स है, 6 टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। उसके अलावा एक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, फिर उसके एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें हायर ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, उस इसी चैप्टर के अंदर। ठीक, फिर हमें क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है। ठीक, सो मैंने कहा ना कंसेप्ट ज़्यादा है, इसके लिए चैप्टर लेंथी। ठीक, तो भी सबसे फर्स्ट मेथड जो पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है, फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर का टाइप पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करके सॉल्व करना इन सिंपल लैंग्वेज। तो इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट इसमें कुछ नहीं है, सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट मी गिव टेक एन एग्जांपल, नॉट गिव बिकॉज देन यू गाइज विल गेट कंफ्यूज। लेट मी टेक एन सिंपल एग्जांपल, वी विल सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। क्वेश्चन 1, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन देखने के बाद सिंपली इतना ऑब्जर्व करना, क्या यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स एक्स अलग एंड वाई वाई अलग हो सकता है क्या, जब आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप 6th मेथड पे जाओगे, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे आपके एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा कि सॉलिड बाय मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएशन, सॉलिड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉलिड बाय बर्नौलीज मेथड, सॉलिड बाय नॉन होमोजीनियस मेथड। नहीं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको डिटेक्ट करना है कि कौन से मेथड से ये होगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कि यार सेपरेशन वेरिएबल से होता है क्या, देखो क्या यहाँ पे x अलग y अलग हो सकता है क्या, हाँ समवेयर देयर इज अ चांस, राइट, हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, हाँ, गिवन दैट क्या दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y प्लस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y प्लस 1। इन दोनों में से y प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। हुआ ना सेपरेट, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे सेपरेट है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। सिंपल, सेपरेट होने के बाद dy के पास y भेज देंगे, x के पास dx भेज देंगे, मतलब इट लुक्स लाइक 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, एंड ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो y प्लस 1 इधर आके डिवाइड किया तो dy अपॉन वाई प्लस 1 की जगह पे मैंने लिखा 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई।
एंड ये डी एक्स उधर जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। हो गए वेरिएबल सेपरेट, वाई के पास वाई, एक्स के पास एक्स, जो जो अपने घर में खुश। अरे हाँ ना, ओके आगे। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, मेथड है ना ये, ऐसे ही मेथड है। वन अपॉन वाई प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई प्लस वन का वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो वन अपॉन वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस वन, या फिर आप इसको मॉड्यूलस डाल दो, फॉर्मूला में मॉड्यूलस होता है, विच इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, एक्स रेस टू वन है तो एक्स रेस टू वन प्लस वन इज टू अपॉन वन प्लस वन इज टू, प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, प्लस यहाँ पे सी देना भूलना नहीं, ठीक है। इट इज़ योर जनरल सॉल्यूशन, इट इज़ अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको जनरल क्यों कहते हैं पता है, इधर सी का वैल्यू पता नहीं, जिस दिन सी का वैल्यू पता रहेगा तो इट इज़ कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जनरल जब सी इज अननोन, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब कहेंगे, पर्टिकुलर सी का वैल्यू पता होगा, सी इज नोन, सी का वैल्यू पता होगा तो उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर। और जनरल कब कहेंगे, जब सी का वैल्यू पता, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं करना है। मैंने इक्वेशन देखा, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई किए एंड आई गॉट द आंसर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ये एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा एंड उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल हैव वन और टू थ्री मोर क्वेश्चंस, ठीक। एक और इसकी तरह करते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। सो लेट मी फाइंड गुड क्वेश्चन फॉर यू। एक अच्छा क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि फिर टाइम पास क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं। ओके ओके, मिल गया, चलो। एटलीस्ट ये वेरिएबल सेपरेशन आज ख़त्म कर देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस दोनों कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मतलब कल, तो देखते कल कितने बजे का लेक्चर रख सकते हैं, ठीक है। तो कल हमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों कंप्लीट करना है। तो एक बार ही होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हो जाए, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह वाला पार्ट कवर अप करेंगे, ठीक। हाँ, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस भी है, थोड़े उनके मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लेकिन थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है, ठीक। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट रहेंगे, ठीक। तो हाफ ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू द मेथड्स ओनली, मोर देन हाफ, नॉट ओनली हाफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू इज solve y upon x into dy by dx is equals to square root of 1 plus x square plus y square plus x square into y square. How will you start? Reply. How will you start?
बोलो क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। एक्स को उधर भेजेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है ठीक है, ओके। यू आर राइट समवेयर, ओके। अदर्स लेट अदर्स ऑल्सो रिप्लाई। बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। रूट के अंदर एक्स को कॉमन ले लेंगे, ओके ओके। और अदर्स सिर्फ 2-3 लोग रिप्लाई नहीं देने चाहिए, एवरीबडी शुड रिप्लाई। क्लास के 2 लोगों की थोड़ी है, सबकी है ना। माई पर्सनल व्यू इज एवरीबडी शुड रिप्लाई, दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना ऑल द टाइम, नॉट अ गुड थिंग। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए, 1 वे नहीं। सिर्फ सर बात करेंगे और 1-2 बच्चे ही बात करेंगे तो उसमें क्या मतलब? सब बच्चों ने बात करना चाहिए, सब बच्चों ने। चलो, आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, कोई बात नहीं कर रहा है। y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, राइट? ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। ये तो ऑलरेडी डिवीजन में, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अटका हुआ तो डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना, लेकिन जब वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो इट इज़ ईजी टू डू। किसी ने कहा सर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, स्क्वायर करने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 ही कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये पूरे में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा इसका 1, उसका वाई स्क्वायर, राइट? एंड इट इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। स्क्वायर रूट सेपरेट हो सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स। बस एक्स वाले पार्ट एक्स के पास भेजो, वाई वाला पार्ट वाई के पास लेके आओ, मतलब वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, एंड एक्स डी एक्स उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितना सिंपल हुआ ना, राइट? अभी मैं इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद कैसे दिखेगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, राइट? इनको मैं थोड़ा सेपरेट सॉल्व करता हूँ, सेपरेट सॉल्व करता हूँ, मतलब ये वाला पार्ट लेता हूँ जिसको हम एल एच एस कहेंगे। एल एच एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, t का हो जाएगा dt अपॉन डी वाई। मुझे सिर्फ y इंटू डी वाई चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड करेगा, dy इधर जाएगा, y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2।
सिंपल। मैंने क्या कहा, 11th-12th का जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छा उसको ये चैप्टर ईजी है। मैंने क्या किया, 1+y² को टी सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया, 1 का डेरिवेटिव 0, y² का 2y, टी का dt अपॉन dy इसके पास चला गया, 2 इसके पास चला गया, क्योंकि y इंटू dy चाहिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, y इंटू dy होता है dt अपॉन 2, 1 अपॉन, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1+y², 1+y² की जगह पे क्या है, t, तो स्क्वायर रूट ऑफ t, राइट। ये मेरे पास आ गया। सभी लोगों को पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाता है रूट टी, खत्म। 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू रूट टी है ना, तो 2 इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, रूट टी। ये आ गया मेरा LHS। क्या आ गया, LHS। इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स डॉट डी एक्स होता है रूट एक्स, प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये LHS है, हम राइट में लिखते हैं, ठीक। फिर अभी RHS लेते हैं। RHS क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² डॉट डी एक्स। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पुट s इज इक्वल्स टू 1+x², यहाँ पे t लिया तो यहाँ पे कुछ और लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, s हो जाएगा ds अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का हो जाएगा 2x, राइट। dx उधर जाएगा क्योंकि मुझे x डॉट डी एक्स चाहिए, तो 2 इधर आएगा, तो कैसे दिखेगा, ds अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x डॉट डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो RHS है कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स हो जाएगा ds अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² की जगह पे क्या आएगा, रूट s, राइट। तो ये 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट s को मैं s⁻² डॉट डी एस लिख सकता हूँ, 1/2 s⁻² का इंटीग्रेशन हो जाएगा s⁻² प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो सी ऐड करना ज़रूरी है। 1/2 s, एक में आधा ऐड करो मतलब होता है 1.5, 1.5 मतलब कितना होता है 3/2, एक में आधा ऐड करो तो ये भी 3/2, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस सी इधर है, तो ये दिखेगा आपको 1/3 s⁻³ प्लस सी, राइट। RHS सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, तो s का वैल्यू डाल दो ना, 1/3, s का वैल्यू क्या है 1+x² प्लस सी, ये आ गया आपका RHS का। वैसे सर आपने यहाँ पे नहीं डाला, डालो ना, स्क्वायर रूट ऑफ t मतलब कौन है, 1+y² डाल दिया, राइट। ये सबको मतलब इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2, इसको नंबर दे दो 3, ठीक। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, 3 को एंड ये 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1+y² जो हमने अभी निकाला था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की जगह पे ये आएगा 1/3 1+x² प्लस सी, दैट्स इट। ये हो गया आपका, इट इज़ अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, GS मतलब जनरल सॉल्यूशन। समझी गए हो तो यस, ना समझी गए तो नो। अब एक क्वेश्चन करते हैं पर्टिकुलर रिलेटेड, फिर 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ एंड वी विल फिनिश द लेक्चर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन इज सॉल्व x माइनस y² x डॉट डी एक्स माइनस y माइनस x² y dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स PS पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ y इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन y 0 कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। ये आपको सॉल्व करना है, फिर इसमें ये सब वैल्यूज डाल के यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है।
क्वेश्चन इज ईजी, नॉट डिफिकल्ट, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. इट्स ऑलरेडी 11 o'clock. सो गिवन दैट एज आवर फॉर्मेट, गिवन दैट क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू 0. ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई. राइट. नेक्स्ट दोनों में से x कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, दोनों में से y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि ये y वाले टर्म से, 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि ये x वाले टर्म से, तो ये कैसे दिखेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये कैसे दिखेगा, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई. राइट. दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई. राइट. आगे हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हम इंटीग्रेशन ही क्यों लेते हैं, वाई नॉट डेरिवेटिव्स. हम इंटीग्रेशन ही क्यों लेते हैं, डेरिवेटिव क्यों नहीं. परत रिपीट. हाँ, वेरी गुड. जब आपको मतलब जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि आपको अगर कोई भी इक्वेशन दिया है, उसको अगर आपको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप डेरिवेट लेते हो. तो डेरिवेटिव को नॉर्मल करने के लिए डेरिवेटिव के उल्टा जो होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन. वेरी गुड समीर, गुड. तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा पता है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिंपल मेथड बता रहा हूँ. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ तो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आपको एडवांस लेवल पे पढ़ना है, 1 का डेरिवेटिव कितना आता है आप मुझे बताओ, 0. एक माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, -2x. तो मैं क्या करूँगा पता है, इधर -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 से डिवाइड कर दूँगा, सिंपल. सेम इधर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. माइनस वाई स्क्वायर का आएगा, -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 से डिवाइड कर दूँगा. ठीक, ऐसा क्यों किया, इम्पॉर्टेंट है. जब भी आपको नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है, तो उसका सीधा आंसर होता है log ऑफ दैट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log ऑफ दैट फंक्शन 1 माइनस वाई स्क्वायर. जिसका डेरिवेटिव है वो आएगा इधर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x था, तो पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, सिर्फ मैंने माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा. 1 माइनस वाई स्क्वायर का -2y आता, तो मैंने पूरा 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा, सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखा, प्लस सी. सर ये -1/2 इधर भी वही है, इधर भी वही, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, खत्म. ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर सोल्यूशन. लेकिन याद रखना थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा. ये आ गया, तो ये दोनों लॉग में, और ये कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं लॉग में लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं लॉग सी लिख देता हूँ. ठीक है, अभी देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग ए प्लस लॉग बी को मैं लॉग ए इंटू बी लिख सकता हूँ, क्योंकि मतलब दोनों का एडिशन है, तो दोनों का प्रोडक्ट लिख के लॉग बाहर लिख देने का. ठीक है, दोनों साइड लॉग है तो कंपेयर होगा, कैंसिल नहीं होगा, कंपेयर होगा. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. यह आया उसका जनरल सॉल्यूशन. इसको क्या कहेंगे, इट इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 2. सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, c 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0. ठीक, इसके आगे 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू सी कितना आएगा, c आएगा, तो ये आ गया -3 मेरा c का वैल्यू. ठीक है, इसको जब मैं इस जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये कैसे दिखेगा, सब्स्टिट्यूट c इन जनरल सॉल्यूशन, तो ये दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c की जगह पे -3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर.
इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 इंटू 1 इज -3 इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 1 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा तो -3 -1 एंड 3y स्क्वायर इधर ही है तो प्लस में, एंड इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू इधर लिखो या इधर लिखो इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, -3 -1 हो जाएगा आपका, -3 -1 क्या आएगा, अरे बोलो, -4, -3 -1 इज -4 विच इज इक्वल्स टू 0, -4 उधर जाएगा तो कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका इट इज़ अ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, खत्म। तो आपको जनरल सोल्यूशन निकालने को आ रहा है, उसमें अगर एक्स एंड वाई का वैल्यू डाल दो तो यू गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑल्सो। गेटिंग, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, so I am giving you 2-3 questions, at least 2 questions for your homework. Homework questions. Question 1, solve x plus 1 dy by dx plus 1 equals to 2 e raised to minus y. Simple questions I am giving, right? Very simple, means in 5-6 steps you will get answer like this. Then one more question I would like to give. Question number 2 related to trigonometry. Solve 3e raised to x tan y dx plus 1 minus e raised to x sec square y dy इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 2 क्वेश्चंस करो, फिर इसका एक जो टाइप है ना वी का सब्सटीट्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इट्स 11 o'clock।